Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to my English class, Standard 8. Today we are going to see 3.2 The Two Gentlemen of Verona English Workshop. तो आइए देखते हैं हमारा इंग्लिश वर्कशॉप. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट द फॉलोइंग. नंबर 1, क्रोनिन स्टोरी focus on selfless help and the importance of dedication towards the relationship. Number 2, the narrator bought the biggest basket of the wild fruit to encourage the two brothers. Number 3, the narrator developed liking for two brothers because they are innocent, serious, pleasant and earnest. The two boys wish to visit the village Polita to visit their sister in hospital. Number 5, so no one can conclude from the story that where there is a will, there is a way, which means if we wish to do anything passionately, we can do that. Next is solve the puzzle of words from the text. The clues are given below. Number 1 is dissolve, that is forbid. Number 2, make known, that is reveal. Number 3, unexpected meeting, that is encounter. Number 4, solving pleasure to mind, feeling or sense of joy, that is pleasant. Number 5, sincere, that is earnest. Number 6, look alike, that means resemble. तो बहुत ही सिंपल था ये पज़ल. नेक्स्ट हम देखते हैं आंसर इन योर ओन वर्ड्स एंड राइट इन योर ओन नोटबुक. सो यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक एज आई हैव नॉट रिटन इट माई नोटबुक. मैंने नोटबुक में नहीं लिखा है, मैंने इसमें ही लिखा है, लेकिन आपको नोटबुक में लिखना है बिकॉज टाइम नहीं है इतना, इसीलिए थोड़ा शॉर्टकट यूज़ किया है. तो नंबर 3, आंसर इन योर ओन वर्ड्स एंड राइट इन योर. सो नंबर 1 इज़ what illness did the sister suffer from? The sister suffering from tuberculosis. Number 2, what surprised the narrator when he saw the brother the second time? The boys found shining shoe in the public square that surprised the narrator. Number 3, what did the narrator find about the boys at the hospital? The narrator found out that boys at the hospital, that is the father was killed in a war and their sister was suffering from tuberculosis. नंबर 4, ऊपर लिखा है मैंने स्टार शाइन करके. वॉट वॉज द टचिंग स्टोरी टोल्ड बाई द नर्स? द नर्स टोल्ड द नरेटर द हार्ट टचिंग स्टोरी ऑफ द बॉयज. देयर फादर वॉज किल्ड इन अ वॉर एंड देयर होम वॉज डिस्ट्रॉयड इन द वॉर. Also their sister was suffering from tuberculosis, but keeping these secrets they were earning money to pay for her sister's treatment. The brothers live in a shelter and starve to pay for their sister's treatment. Number 5, if the narrator offered the boy a large amount of cash, would they have accepted? Say why or say why not. So if the narrator offered the boys a large amount of cash, I think they would not have accepted because they were honest and hard working. Number 4, read the text and find the noun form of the following word used in the text. So first is important. So noun form is importance. Number 2, dedicate, dedication. Number 3, treat, treatment. Number 4, narrate, narrator. Number 5, eager, eagerness. Number 6, appear, appearance. Number 7, amplify, amplification. Number 8, realize, realization. So this we have done with our English workshop. Now we'll move to language study. So let's see the language study. So we have already learned about the clause is a group of words that has a subject, a verb and is a part of a large sentence. In the sentence, we returned home when school was over. There are two clauses. First, we returned home and the second when school was over.
The first one makes complete sense, so it is called main principal clause. When school we return home, हम घर वापस आ गए, दैट इज़ द मेन प्रिंसिपल क्लॉज, बिकॉज वो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है. बट द सेकेंड वन इज़ नॉट कंप्लीट बाय इटसेल्फ. लेकिन जो सेकेंड सेंटेंस है वो अपने आप में पूरा नहीं है. इट डिपेंड ऑन द मेन क्लॉज टू कन्वे अ प्रॉपर सेंस. और वो पूरी तरह से डिपेंड करता है फर्स्ट सेंटेंस पे या मेन क्लॉज पे, ताकि जो उसका मतलब है वो सही आए. सो इट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज. व्हेन इज़ जॉइनिंग वर्ड एंड इट इज़ कॉल्ड सबऑर्डिनेटर. जब हम व्हेन के ज़रिए सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं तो वो जो है वो सबऑर्डिनेटर कहलाता है, सबऑर्डिनेटर. सो अब हम देखेंगे कि इसकी एक्सरसाइज हमको किस तरह से करनी है. आइडेंटिफाई द मेन प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड इनसर्कल द सबऑर्डिनेटर. ओके, तो फिर हम इसका जो सबऑर्डिनेटर है उसको सर्कल करेंगे और मैंने जो मेन क्लॉज है उसको अंडरलाइन कर दिया है. तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि मेन जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज को मैंने अंडरलाइन नहीं किया. तो नंबर 1, दे पे फॉर देयर सिस्टर्स ट्रीटमेंट हु सफ़र्स फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस. तो फिर जो फर्स्ट मेन क्लॉज है वो है दे पे फॉर देयर सिस्टर्स ट्रीटमेंट, क्योंकि ये अपने आप में एक पूरा जुमला है और इसमें हु जो है वो सबऑर्डिनेटर है. तो जाहिर सी बात है, तो इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज है हु सफ़र फ्रॉम द ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है. नंबर 2, व्हेन ही आस्क्ड द नर्स ही टेल्स हिम देयर स्टोरी. तो व्हेन सबऑर्डिनेटर है क्योंकि वो सेंटेंस ज्वाइन कर रहा है. ही आस्क्ड द नर्स, तो ये जो है अपने आप में पूरा जुमला नहीं है. तो जो जुमला पूरा कौन सा है, शी टेल्स हिम देयर स्टोरी. उसने, ये जो है मेन क्लॉज है, तो उसका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या हो गया, ही आस्क्ड द नर्स. तो ये आपको जो है टाइटल डाल के लिखना है, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेटर. नंबर 3, दे हैव शोन दैट वॉर हैज़ नॉट शेकन देयर स्पिरिट. ऑब्वियसली दैट इज़ सबऑर्डिनेटर क्योंकि वो दो जुमलों को जोड़ रहा है और उसका मेन क्लॉज है दे हैव शोन. ठीक है. और उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज है वॉर हैज़ नॉट शेकन देयर स्पिरिट. नाउ मूव ऑन टू नंबर 4. ऑल्दो इट डजंट कम इन द नरेटर्स वे ही टेक्स देम देयर. ऑल्दो कनेक्टिंग यानी सबऑर्डिनेटर है, दो जुमलों को जोड़ रहा है और इसमें मेन क्लॉज है ही टेक्स देम देयर. और ऑब्वियसली फिर जो बच जाता है वो है उसका सबऑर्डिनेटर क्लॉज, दैट इज़ इट डजंट कम इन द नरेटर्स वे. होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. इस उम्मीद के साथ आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करेंगे. ठीक है. अल्लाह.